سنائی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال لندن میں ایک سڑک پر انہوں نے 78 سالہ جی ایس برار پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا کی یاد میں آج تاریخی دعائے تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں درجنوں عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کی علامت بننے والے جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام لیڈر نیلسن منڈیلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جوہانسبرگ کے FNB فٹ بال اسٹیڈیم میں منعقدہ دعائے تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون، امریکی صدر براک اوباما سمیت 90 سے زیادہ عالمی رہنما شریک ہوئے۔ اس تقریب کو گزشتہ چند برسوں میں عالمی رہنماؤں اور دنیا کی معروف شخصیات کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کے سر سے ایک باپ، بہترین ٹیچر اور ایک ہیرو کا سایہ اٹھ گیا۔ بان کی مون نے کہا کہ منڈیلا جیسی عظیم شخصیت کے انتقال پر غم ضرور ہو رہا ہے، لیکن منڈیلا نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے اس پر جشن کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ منڈیلا نے آزادی اور جمہوریت کی بقا کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے نیلسن منڈیلا کو تاریخ کی عظیم شخصیت قرار دیا۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے اپنے خطاب میں منڈیلا کو صدی کی سب سے بااثر شخصیتوں میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ دنیا منڈیلا کے تاریخی ورثے کا احترام کرے گی۔ پرنب مکھرجی نے کہا کہ منڈیلا نے دنیا کو صلہ رحمی اور مصالحت کے صحیح معنی سمجھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منڈیلا نے ناانصافی اور عدم مساوات کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ منڈیلا کے ہندوستان دورے کو یاد کرتے ہوئے پرنب مکھرجی نے کہا کہ منڈیلا ہندوستان کے لیے ایک رتن کی حیثیت رکھتے تھے، اسی لیے انہیں ملک کے سب سے اعلیٰ سویلین ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا۔ اس تقریب سے چین، برازیل، کیوبا، افریقی یونین کے سربراہان نے بھی خطاب کیا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ وسطی افریقی جمہوریہ کار کے دارالحکومت بانگی کے مضافات فو میں مشتعل ہجوم نے ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا اور مسجد کی دیواریں گرانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ مسجد کے باہر کھڑی گاڑیوں کو بھی ہجوم نے آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ بانگل کی مسجد کے باہر ایک ہجوم جمع ہوا۔ یہ لوگ مسلم مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ ان لوگوں کا الزام ہے کہ ملک کے مسلمان سابق باقی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ منگل کے روز فرانس کے صدر دفتر نے اعلان کیا تھا کہ بانگل میں ہوئے تصادم میں 2 فوجی مارے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ وسطی افریقی جمہوریہ کے مسلم باغیوں سلیکا نے مارچ کے مہینے میں عیسائی اکثریت والے ملک میں حکومت کا تختہ پلٹ گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ تاہم گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فرقے وارانہ تشدد میں زبردست اضافہ ہوا اور گزشتہ 2 دنوں میں تقریباً 40 اموات درج کی گئیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے امریکی صدر براک اوباما سمیت کئی عالمی لیڈروں نے لوگوں سے امن کی اپیل کی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں غلام ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے صرف کر دی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر صحافت کی دنیا کا بھی ایک معتبر نام ہے، جن کے بغیر سچی صحافت کا ذکر بھی ادھورا لگتا ہے۔ آج ان کی 135ویں سالگرہ ہے۔ اسی مناسبت سے پیش ہے ETV اردو کی خاص پیشکش۔ ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم رہنما مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر ریاست رامپور میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ مذہبی خصوصیات کا مرقع تھیں، اس لیے بچپن ہی سے تعلیمات اسلامی سے گہرا شغف رہا۔ ابتدائی تعلیم رامپور اور بریلی میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ BA کا امتحان اس شاندار کامیابی سے پاس کیا کہ الہ آباد یونیورسٹی میں اول آئے۔ ICS کی تکمیل آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی۔ واپسی پر رامپور اور بڑودہ کی ریاستوں میں ملازمت بھی کی، مگر جلد ہی ملازمت سے دل بھر گیا۔ پھر کلکتے جا کر انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا۔ مولانا کی لاجواب انشا پردازی اور ذہانت طبع کی بدولت نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند بھی کامریڈ بڑے شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ انگریزی زبان پر عبور کے علاوہ مولانا جوہر کی اردو دانی بھی مسلم تھی۔ انہوں نے ایک اور اردو روزنامہ ہمدرد بھی جاری کیا،
جو بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ اظہار خیال کا کامیاب نمونہ بنا۔ جدوجہد آزادی میں سرگرم حصہ لینے کے جرم میں مولانا جوہر کی زندگی کا کافی حصہ قید و بند میں بسر ہوا۔ تحریک عدم تعاون کی پاداش میں کئی سال جیل میں بند رہے۔ سن 1919 کی تحریک خلافت کے بانی آپ ہی تھے۔ ترک موالات کی تحریک میں گاندھی جی کے برابر شریک رہے۔ دہلی میں واقع جامعہ ملیہ اسلامیہ آپ ہی کی کوششوں کی بدولت قائم ہوا۔ آپ جنوری 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے انگلستان آئے۔ یہاں آپ نے آزادی وطن کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ اگر تم انگریز میرے ملک کو آزاد نہ کرو گے تو میں واپس نہیں جاؤں گا اور تمہیں میری قبر بھی یہیں بنانا ہوگی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے لندن میں انتقال فرمایا۔ تدفین کی غرض سے نعش بیت المقدس لے جائی گئی۔ مولانا کو اردو شعر و ادب سے بھی دلی شغف رہا۔ بے شمار غزلیں اور نظمیں لکھی جو مجاہدانہ رنگ سے بھرپور ہیں۔ آپ کا ایک شعر نہایت مشہور ہوا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر کی یوم پیدائش کے موقع پر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں سلور جوبلی ایوارڈ کی تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں مقررین نے مولانا کو خراج عقیدت پیش کیا اور مولانا کے کارہائے نمایاں کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر فراموش کیے جانے پر تشویش کا بھی اظہار کیا گیا، تاہم مولانا کے کارہائے نمایاں سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنے پر زور دیا گیا۔ دو یونیورسٹی انہوں نے اس سر سید احمد خانے اور مولانا محمد علی جوہر نے جو 200 سال پہلے بنیاد ڈالی تھی، اگر وہی سلسلہ ہمارے بزرگوں میں جاری رہتا تو آج ہمارے 100-200 یونیورسٹی ہو سکتے تھے۔ آج وہ نہیں ہیں، ہم اس کے افسوس آج کی جو ہم اس کا احساس آج ہو رہا ہے۔ آج آزاد ہندوستان میں آزادی کو تو ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاستدانوں نے اپنی قربانی دی، آزادی دلائی ملک کو، مگر آج ہم نے آزادی کے بعد ہمارا رول ڈیفائن نہیں کیا۔ یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا کنفرنٹیشن ہمارے کچھ حضرات نے کرایا، اس کی وجہ سے ہم پسماندگی میں چلے گئے۔ یہ تفریق دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق رہبانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نفس کو کچل ڈالنا رہبانیت ہے اور نفس پر شرع کے تابع ہو کر قابو پانا ربانیت ہے۔ اسلام ربانیت کی تعلیم دیتا ہے، رہبانیت کی نہیں۔ اس لیے ہماری تعلیم بیک وقت دینی اور دنیاوی ہونا چاہیے۔ آخر میں ترچھی نظر۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ لکھنؤ میں واقع درگاہ حضرت محکوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت، دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں۔ بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बहुतों की उम्मीदों के नए स्टार हैं। शीला दीक्षित को हराकर वे राजनीति के शेर खां बने हैं। उन्होंने जो किया है वह उनके जुनूनी स्वभाव या कि पुरुषार्थ और भाग्य की बदौलत है। अच्छी बात यह है कि जीत के बाद भी केजरीवाल एंड पार्टी जमीन पर है। मीडिया, एनजीओ और सेकुलर जमात के कई लोग उनमें अखिल भारतीय राजनीति की संभावना बताने लगे हैं। यह थ्योरी दी जा रही है कि नरेंद्र मोदी के जादू की काट में केजरीवाल समर्थ होंगे। जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनने दी, वैसे लोकसभा चुनाव में वे हल्ला बोल करके नरेंद्र मोदी को रोकेंगे। मुमकिन है कि अन्ना हजारे अब आप पार्टी से जुड़े। मतलब ऐसे लाख कारण हैं जिनसे केजरीवाल एंड पार्टी बास पर चढ़े। अपने आप को मई 2014 का चुनावी खेल बिगाड़ने वाली ताकत माने। यदि ऐसा होता है तो ये केजरीवाल एंड पार्टी का अपने पांवों कुल्हाड़ी मारना होगा। बावजूद इसके नोट करके रखें कि नरेंद्र मोदी विरोधी तमाम ताकतें केजरीवाल एंड पार्टी में हवा भरेगी। केजरीवाल और उनके साथ जुड़ी उत्साही जुनूनी टीम अब भटकने की संभावनाएं लिए हुए हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। सोनिया गांधी के कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद पहली बार उनकी क़यादत को चैलेंज मिला है। कांग्रेस में आमतौर पर गांधी नेहरू खानदान की क़यादत को चैलेंज देने की रवायत नहीं रही है। नरसिम्हा राव या सीताराम केसरी के वक्त तो रहनुमा उन्हें चैलेंज करते रहते थे, लेकिन खानदान के खिलाफ कांग्रेस के रहनुमा मुंह नहीं खोला करते थे। लेकिन अलग तेलंगाना रियासत के फैसले और 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह से शिकस्त के बाद सोनिया राहुल की क़यादत को संजीदा चैलेंज मिला है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण रेड्डी पूरी तरह से बाकियाना तेवर अपना चुके हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत और कांग्रेस आला क़यादत को चैलेंज करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो कैसे बंटवारा करवाते हैं। उन्हें बंटवारे की तजवीज़ भेजने दीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उनके प्रोग्रामों में अब सोनिया और राहुल गांधी के पोस्टर नहीं लगाए जा रहे हैं। इसी तरह सीमांध्र के 6 कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ का नोटिस दे दिया है। माना जा रहा है कि ये मेंबरान पार्लियामेंट जगन मोहन की पार्टी YSR कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू की TDP के साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस जराये का कहना है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस शिकस्त से 2-4 होकर इख्तदार से बाहर हुई तो सोनिया राहुल की क़यादत के खिलाफ चौतरफा आवाज़ें बुलंद होंगी। कांग्रेस क़यादत को चैलेंज के साथ साथ पार्टी के अंदर इलाकाई लीचान के बीच भी जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। 4 रियासतों में मिली शिकस्त के बाद पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर इल्जामात मढ़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने कोशिश करके जो रजामंदी कायम की थी वो हवा में उड़ गई है और रहनुमा एक दूसरे को निपटाने की सियासत कर रहे हैं। दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित ने बराह रास्त दिल्ली कांग्रेस सदर जयप्रकाश अग्रवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि
इलेक्शन में पार्टी ने उनकी मदद नहीं की। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने दोनों लीडरान को कम से कम 4 बार अपने साथ बैठाया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इलेक्शन से पहले 1 महीने तक कांग्रेस के रहनुमा दिल्ली में बैठकर टिकट के लिए लॉबिंग करते रहे थे। सवाल है कि दिल्ली में टिकट के लिए बैठे रहनुमा कौन थे? जब इंतखाबी तशहीर कमेटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंपेन शुरू कर दिया तो रियासती सदर कांतिलाल भूरिया दिल्ली में बैठे थे। वो दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। दिल्ली में टिकटों के लिए लॉबिंग करने वालों में प्रेमचंद गुट्टू, सज्जन सिंह वर्मा वगैरह रहनुमा भी थे। ये सब भी दिग्विजय सिंह के ही करीबी बताए जाते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में रियासती सदर चरणदास महंत सीटों की गिनती करके बता रहे हैं, जो उनके हिसाब से दाखिली खलफिशार की वजह से पार्टी हारी है। उनका निशाना साबिक वजीर आला अजीत जोगी पर है। दिल्ली में हुकूमत नहीं बनाने का ऐलान कर चुकी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने हिसाब लगाया है कि अगर हुकूमत नहीं बनती है और लोकसभा के साथ अप्रैल मई में दोबारा इलेक्शन होता है तो उनको पूरी अक्सरियत मिल जाएगी। जराये के मुताबिक बीजेपी लीडरान की मीटिंग में बिहार की मिसाल पेश की गई। जिस तरह 2005 में बीजेपी और जदयू दोनों पहले इलेक्शन में 91 सीटों पर रुक गए थे और 9 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ तो पूरी अक्सरियत मिल गई थी। वही कहानी दोहराए जाने की उम्मीद बीजेपी लीडरान को भी है। उनको भी लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी की लहर मजीद तेज होगी, उसमें सब उड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी का मानना है कि हुकूमत नहीं बनाने से उनकी छवि मजीद मजबूत होगी और दूसरे इलेक्शन में उनको मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी। आपके लिए योगेंद्र यादव ने जो हिसाब लगाया है, उनके मुताबिक जिन 20 सीटों पर आप उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं वो उसके खाते में आ सकती हैं। आपके रहनुमा मौजूदा वोट बनाए रखते हुए उसमें 2-3% के स्विंग की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के मन से ये पैगाम गायब हो गया है कि आम आदमी पार्टी इख्तियार में नहीं आ सकती है, इसलिए अगली बार लोग खुलकर उसे वोट डालेंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के अच्छे लीडरों से अपील की है कि वो अपनी पार्टी छोड़ें और 2014 के आम इंतखाबात के लिए उनकी पार्टी से जुड़ जाएं। केजरीवाल ने कहा कि दूसरी पार्टियों में भी बेशतर अच्छे लोग मौजूद हैं। उन्हें या तो अपनी पार्टी में बगावत करके उसे ठीक करना चाहिए या फिर पार्टी छोड़कर अगले साल के इंतखाबात के लिए उनके साथ आ जाना चाहिए। केजरीवाल ने मुत्तहदा हुकूमत बनाने से भी 2 टूक में इनकार कर दिया। उन्होंने प्रशांत भूषण के मशवरे को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी को मशरूत हिमायत देकर उनकी हुकूमत बनवाने का मशवरा उनकी निजी सोच थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी न किसी को हिमायत देगी और न ही किसी से हिमायत लेगी। केजरीवाल और बीजेपी दोनों के इस रुख की वजह से दिल्ली में सियासी बहरान बरकरार है। इस बीच अन्ना की टीम से जुड़े मुफ्ती शमून कासमी ने केजरीवाल से कहा है कि वो कांग्रेस की हिमायत लेकर हुकूमत को बनाए। दिल्ली में बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन को आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब कर लिया गया। आज दिल्ली रियासती बीजेपी दफ्तर में तलब की गई मीटिंग में नौ मुंतखब पार्टी के 31 असम्बली अरकान ने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना रहनुमा मुंतखब किया। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को 31 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हलीफ अकाली दल को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। मीटिंग के बाद हर्षवर्धन ने मीडिया से कहा कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हम गैर इखलाकी तरीके से हुकूमत साजी के ख्वाहिशमंद नहीं है और न ही इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी और अन्ना हजारे के अनशन से परेशान हुई मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के रमा इजलास में ही लोकपाल बिल पास कराने के लिए अपने अज़्म पर कायम है। वजीर आजम के दफ्तर के ममलिकती वजीर वी नारायण सामी ने कहा है कि उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को लोकपाल बिल के लिए नोटिस दिया है और हुकूमत इसी इजलास में बिल को पेश करके उसे पास करवाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसे पास कराने के लिए ईमानदारी से हर कोशिश कर रही है। नारायण सामी ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की कुछ सिफारिशात को मंजूर कर लिया है और पार्लियामेंट में इस पर बहस कराकर इसे पास कराने के अपने अज़्म पर कायम है। गौरतलब है कि जन लोकपाल बिल को लेकर ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आगाज हुआ था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पैदा हुई है।
गांधीवादी समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत का अनशन शुरू कर दिया है। इस बिल को पास कराने के लिए वो 2 बार दिल्ली में अनशन कर चुके हैं। आज अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन शुरू करने से कबल अन्ना ने एक मुकामी मंदिर में पूजा की। अन्ना ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से हुकूमत को अक्ल शऊर देने को कहा है ताकि वो जल्द से जल्द लोकपाल बिल को पास करे। उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल पास होना मुल्क की तामीर की सिमत में एक बड़ा कदम होगा। अन्ना ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूपीए हुकूमत अपना वादा पूरा करे या फिर इख्तदार को छोड़ दे। अदालत उस्मा ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ आईनी और आला ओहदों पर फायज लोगों को ही मिलनी चाहिए। अदालत ने मरकजी हुकूमत को लाल बत्ती के बेजाय इस्तेमाल से रोकने की हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने उन लोगों की एक ताज़ा फहरिस्त जारी करे जिन्हें इसकी सहूलत दी जा सकती है। जस्टिस GS सिंघवी की सदारत वाली बेंच ने हुकूमत से 3 महीने के अंदर इस मामले में बने ज़ाब्ते को तरमीम करने के अहकामात भी दिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभय सिंह की अर्जी पर समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत को ये यकीनी बनाने की हिदायत की है कि वो मुकामी रहनुमा वकार की शनाख्त के तौर पर इसका इस्तेमाल न करे। अदालत ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमतें लाल बत्ती लगाने के हकदार लोगों की फहरिस्त की तौसीह नहीं कर सकती हैं। स्पेक्ट्रम तकसीम घोटाले पर बनी JPC की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश कर दी गई। पीर को लोकसभा में बिल पेश किए जाते वक्त इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। बीजेपी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बिल को पेश किए जाने के तरीके की मुखालफत की थी। राज्यसभा में बीजेपी के डिप्टी रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने बिल को फ्रॉड बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सच्चाई को दबाने और छिपाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा में बिल को पेश किया गया है वो गलत था। उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं यशवंत सिन्हा और गोपीनाथ मुंडे ने पीर को पूरी संजीदगी के साथ इस बिल की मुखालफत की थी। इस बीच बीजेपी ने राज्यसभा में अपने नए चीफ व्हिप के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में रुकने असेंबली चुन ली गयी। माया सिंह की जगह प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा में बीजेपी के नए चीफ व्हिप रहेंगे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा और उनके सख्त मुखालिफ क्यूबा के सदर राउल कास्त्रो समेत दुनिया भर के लीडरान ने जनूबी अफ्रीका की दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में नेल्सन मंडेला को नम आंखों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। जबरदस्त बारिश के बीच दुनिया के 53 ममालिक के सरबराहान प्रिटोरिया में यकजा हुए। 95,000 लोगों की अहलियत वाले FNB स्टेडियम में मंडेला को खिराज अकीदत पेश किए जाने के लिए 2 घंटे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। हिंदुस्तान की क़यादत सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने की। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और बीजेपी की सीनियर रहनुमा सुषमा स्वराज ने भी ताज़ियती तकरीब में हिस्सा लिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वे घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी ने एक हिकमत अमली के तहत 4 रियासतों में बीजेपी के शानदार कारकर्दगी का सेहरा नरेंद्र मोदी को नहीं देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि
हफ्ते को कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अजय माकन ने अपने तमाम तर्जुमान और टेलीविजन पर बोलने के लिए जाने वाले तर्जुमानों की एक मीटिंग मुनक्किद की थी। इसमें तय हुआ था कि नतीजे अगर बीजेपी के हक में आते हैं तब भी नरेंद्र मोदी को सेहरा नहीं देना है, बीजेपी इलाकाई लीडरान की तारीफ करनी है और उनके ही सर जीत का सेहरा बांधना है। इसी तरह एक हिकमत अमली के तहत चारों रियासतों को एक साथ दिखाने के बजाय हर रियासत के फैसले को अलग अलग करके बताने और वहां के मुकामी इशूज पर तवज्जो रखने की थी। तीसरी हिकमत अमली मोदी के मुकाबले केजरीवाल को खड़ा करने की थी। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ लीडरान का कहना है कि मोदी के असर को तस्लीम करके उसकी काट तलाश करने के बजाय मोदी को खारिज करने की हिकमत अमली कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी में यूपीए की हलीफ जमातों और मुमकिन हलीफों की तरफ से दिए गए बयानात को लेकर जबरदस्त फिक्रमंदी का माहौल है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी की जीत उसके हक में मुस्बत लहर होने से नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे मुल्क में जिस तरह का माहौल है उसकी वजह से हुई है। उन्होंने गैर कांग्रेसी वाद की अपनी सियासत को मजीद धार दिया है। दूसरे इलाकाई लीडरान भी अब कांग्रेस के साथ इत्तेहाद से पहले कई बार सोचेंगे। इसी तरह शरद पवार ने कांग्रेसी क़यादत को कमजोर और फैसला न करने वाला बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने जरूर यूपीए में बने रहने की बात कही है, लेकिन उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ की और कांग्रेस को अपनी सियासत पर फिर से गौर किए जाने का मशवरा देकर कांग्रेसी लीडरान की फिक्र बढ़ा दी है। झाड़ू का जादू दिल्ली से बाहर क्या अखिल भारतीय राजनीति में बन सकता है? इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, पर हिसाब से केजरीवाल को दिल्ली में लोगों की उम्मीद पूरी करने का एक्शन प्लान बनाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगे तब भी बिजली पानी का बिल कम करवाने का उसे दबाव बनवाना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली के इंतखाबी नतीजों ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों और इम्कानात को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर जीत और 20 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन ऐसी हालत है जिसे पाकर कोई भी जोश से शर्मसार हो सकता है। लेकिन इन आदाद शुमार से आधी अधूरी तस्वीर बनती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली हुकूमत नहीं बनी है और दूसरी भी कोई हुकूमत बनती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में अगले 6-7 महीने ऐसा क्या हो जिससे उनके तमाम असेंबली अरकान उनके साथ रहें और उनका साथ देने वाले वोटर भी उन्हें छोड़कर न जाएं। ये उनकी पहली और सबसे अहम फिक्र होनी चाहिए। ये फिक्र इसलिए जायज और फितरी है कि बीजेपी 1993 से लेकर अब तक हुए 5 इंतखाबात में 30% के आसपास वोट पाती रही है और इस बार भी उसका ये वोट बैंक कायम रहा है और उसमें कुछ नए वोट जुड़े हैं। जाहिर है कि अपने तमाम हंगामे में केजरीवाल की पार्टी बीजेपी का वोट नहीं काट पाई है। ऐसे में अगर 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होते हैं और बीजेपी अपना वोट बैंक बचाए रखती है और कांग्रेस के जो वोट केजरीवाल की पार्टी को मिले हैं वो वापस लौटते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। हालांकि ये बहुत अगर मगर वाली बात है, लेकिन ये जरूर है कि अगले 6 महीने के लिए केजरीवाल को बहुत सोच समझकर हिकमत अमली तय करनी होगी। उन्हें इस भ्रामे में नहीं आना होगा कि उन्होंने बीजेपी का रथ रोका है। जैसा कि नतीजों के अगले दिन कुछ अखबारात की हेडलाइन थी कि केजरीवाल की वजह से दिल्ली में कमल नहीं खिला। दिल्ली के नतीजों की बुनियाद पर कुछ माहिरीन केजरीवाल की कुल हिंद सतह की लहर बनाने में लगे हुए हैं। ये तशहीर भी शुरू हो गई है कि मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में झाड़ू का जादू चल सकता है। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर पटना तक की सीटों का हिसाब लगाया जा रहा है। कई सियासी माहिरीन ये थ्योरी चला रहे हैं कि केजरीवाल ही मोदी के मुकाबले हिट होंगे और उन्हें रोक सकेंगे। अगर इस भुलावे में आकर उन्होंने दिल्ली असेंबली के साथ साथ लोकसभा के लिए कुल हिंद सतह पर तैयारियां शुरू की तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। अभी उनकी पूरी तवज्जो दिल्ली पर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से बड़े वादे किए हैं। बिजली की कीमतें 50% कम करने का वादा किया है तो 700 लीटर पानी मुफ्त में देने का वादा किया है। खवातीन के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का एक एक्शन प्लान भी उनके इंतखाबी मंशूर में शामिल था। इस वक्त अगर अगले 6 महीने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इख्तदार रहा तो केजरीवाल को अपने वादों के तई संजीदगी दिखाते हुए उन्हें नाफिज कराने का दबाव डालना चाहिए। जिस तरह इलेक्शन से पहले वो लोगों के राब्ते में रहे उसी तरह उन्हें दिल्ली में आपकी ललक को जगाए रखनी होगी। अगर मीडिया मोदी मुखालफत और NGO बरादरी के भुलावे में आकर
कुल हिंद सतह पर मुहिम शुरू करता है तो उनकी अहम ख्वाहिशात की ज्यादा तशहीर होगी। दिल्ली के लोगों ने उनको वजीर आला बनाने के लिए वोट दिया है, उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनको काम करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद केजरीवाल के भविष्य पर चर्चा करेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज